Good morning, students. Today we are going to start the same chapter, that is chapter number 2, shapes and angles, and we are going to start the part number 4. We have already seen as the shape changes, the angle changes. Further, we are going to see, we have already seen in your name there are different angles which are there, like acute angle, obtuse angle, or right angle. Right angle is 90 degree, acute angle is less than 90 degree, and obtuse angle is more than 90 degree. So I think you must have done your activity with the different names you have written and how madam has counted. You have done this. So let us see further. Now here there are some activities which are open the page number 25. You can see the activity, what is written here. Here they have written, if you put 10 such books, here they have mentioned math magic books, but no need to take math magic books. You can take some other smaller books also. Just you keep one after another, and then you have to make a slide. You can use a pencil box or something like that. Okay, so sometimes you have to keep more books with your pencil box, and sometimes you have to keep less book with the pencil box. This activity I am going to show, and they have asked few questions. Their angle is going to be made. You can see like the books which are kept here, and this is your pencil box, books again, and pencil box. Now which angle is making, which slanting is making more angle smaller or bigger? So there are few questions which we are going to see here, and you just see what madam is doing with the activity. See now. See, you can see madam has kept one box here and two books over here. This is the pencil box which madam is using, and here madam is making the slanting. Can you see there certain angle is been made? See here carefully. See. So there is some angle is been made. Okay. So this is the height. This is the height, and this is the angle which has been made. Okay. After that, if madam reduce the height, like suppose I kept the books here, only the box is there, and now if you see, now can you see the slanting is becoming more, and the angle, you can see here, angle has increased. Angle has increased, yes or no? You can perform this with boxes or with notebooks. You can do at your home also, and you can see the angle will increase or decrease if the height of the books which you have kept, like here I have reduced, you can see I have reduced, so the angle has increased. But if I increase the height, see I have increased the height, and now I am keeping the slanting. Now you can see the angle has been reduced. Okay, so there are few questions which they have asked here. You can see here. This is the activity. This is the activity which they have told you to do. Okay, so you can with the instead of 10 magic books, you can keep some other books or boxes and make the slanting how madam has made. आप मैथ्स मैजिक बुक की जगह कोई और बुक रख सकते हो और स्लांटिंग बना सकते हो, और एक वैसा बनाना और एक कम बुक्स के साथ बनाना, जैसे मैम ने अभी कम बुक्स के साथ बनाई हैं, ठीक है ना, कम बुक्स या बॉक्स के साथ। और फिर क्या क्वेश्चन किया है, रोल अ बॉल, रोल करो एक छोटा सा बॉल, तो फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर, किस में सबसे ज्यादा फास्टर होगा? यस, नेचुरली जिसमें हाइट कम हो, सेकंड वाले में, मैडम ने जो भी बताया सेकंड वाले में आपका बॉल जल्दी रोल होगा। विच स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल, कौन सी स्लाइड का सबसे स्मॉलर एंगल होगा? किसका होगा? नेचुरली जिसकी हाइट कम होगी उसकी हाइट ज्यादा होगी। जिसमें मैम ने पहले वाले में बॉक्स रखा था, बॉक्स के ऊपर 2 बॉक्स बुक रखे थे, उसमें सबसे स्मॉलर एंगल होगा। अब यहाँ पर देखो एक बच्चा खेल रहा है, खेलने गया है, वो सोच रहा है कि मैं किस में कौन से स्लांटिंग में यूज करूं जिसमें मुझे कम खतरा हो। अब ये देखिए इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट, ठीक है, और इसकी स्लांटिंग देखिए, और इसकी हाइट देखिए, और इसकी स्लांटिंग देखिए। अब क्या क्वेश्चन पूछा है,
These are two slides in a park. Which slide has a larger angle? Naturally the B1. B1 के पास ज़्यादा, आप देख सकते हो B1 के पास larger angle है. This is the A1. This is the B1. Yes, A and B. ठीक है, तो B1 के पास ज़्यादा बड़ा एंगल है. फिर क्या लिखा है? Which slide do you think is safer for the little boy? Little boy के लिए कौन सा safer है? Naturally, which has a bigger angle. Why? Because it will take more time. आराम से वो आ सकता है. और यहाँ पर स्ट्रीप है, एकदम स्ट्रीप है, इसीलिए अगर वो आएगा बहुत स्पीड में आएगा और उसे चोट लग सकती है ना. So that is the reason the B slider is much more safer for the smaller one. छोटे के लिए वही ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, तो अभी हम इसी चीज को एक बार ब्लैक बोर्ड में देखेंगे. स्टूडेंट्स, लेट अस सी नाउ व्हाट मैडम हैज एक्सप्लेन्ड राइट नाउ. ओके, यहाँ पर आप देखिए एक्टिविटी जो मैम ने कहा था पेज नंबर 25 में बुक्स वाली, वो आपको पूरी एक्टिविटी लिखनी है और लिखने के बाद आप एक कंक्लूजन लिखोगे. कंक्लूजन मतलब क्या होता है नोटबुक में? कंक्लूजन मतलब आपने इस चीज से क्या सीखा और आपको क्या मालूम चला. व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम हियर. ओके, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एज वी इंक्रीज हाइट ऑफ बुक्स एंगल बिकम स्मॉलर. अभी हमने देखा जैसे ही बुक्स की हाइट आप इंक्रीज कर रहे हो तो एंगल छोटा छोटा स्मॉलर होता जाएगा. अभी मैम ने समझाया ना, पहले बॉक्स रखा फिर दो बुक्स रखी, तो उसमें आपने देखा कि एंगल जो हो गया बहुत ही छोटा हो गया था. और जब मैडम ने दो बुक्स निकाली तो एंगल बिकेम ग्रेटर, है ना. और मैम ने अभी आपको क्या बताया, जब वो बच्चा स्लाइड करने जाता है तो कौन से वाले स्लाइड में जाएगा? बड़े वाले स्लाइड में जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें वो स्लोली ही विल कम डाउन एंड इट इज सेफर फॉर हिम. उसके लिए वो अच्छा है. ठीक है, तो यही मैम ने लिखा है. यहाँ पर आप देखिए जो मैम ने अभी पढ़ाया है उसी का आंसर लिखा है जो आपको अपने बुक में लिखना है. नोटबुक में जब आप लिखोगे, आप एक्टिविटी लिखने के बाद जो क्वेश्चंस लिखा है उसके बाद ये आपको लिखना है. यू हैव टू राइट द आंसर. स्लाइड विच हैज 10 बुक्स हैज अ स्मॉलर एंगल, है ना. स्लाइड विच हैज 10 बुक्स हैज अ स्मॉलर एंगल. फिर वहां पर और एक चीज लिखिए कि स्टूडेंट्स किस में जाएंगे, कौन से स्लाइडर में जाएंगे? पेज नंबर 26 में, जहाँ पर वो बच्चा स्लाइड के लिए जा रहा है. तो आपको ये आंसर लिखना है. द स्लाइड विच हैज बिगर एंगल is safer for students. वो एंगल सेफर है स्टूडेंट के लिए क्योंकि वो धीरे धीरे आएगा. तो अभी आप भी जब पार्क में जाओगे इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है. अब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे बुक में, वो आप देखिएगा. पेज नंबर 26 आपने ओपन किया. ये मैम ने अभी समझाया आपको कि इसमें ज्यादा सेफर है क्योंकि यहाँ पर एंगल ग्रेटर है और यहाँ पर एंगल स्मॉलर है. और ये जो क्वेश्चंस के यहाँ है बेटा, ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको मैम ने अभी जो ब्लैक बोर्ड में बताया वो आपको लिखना पड़ेगा. नाउ कम हियर, चेंजिंग शेप्स. यहाँ पर क्या लिखा है? शेप्स थिंग्स यू नीड यूज फॉर मैच स्टिक्स पीस ऑफ रबर ट्यूब यूज इन साइकिल बॉक्स. ये देखो मैम ने यहाँ पर यूज किया है. ये है साइकिल बॉल्स जो मैम ने डिफरेंट शेप बनाने के लिए यूज किया है. मैडम आपको भी बताएगी व्हाई इट इज नीडेड एंड यू कैन परफॉर्म इन योर होम ऑल्सो. क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैच स्टिक. जो मैच स्टिक के ये ब्लैक एंड है उनको आपको क्लीन करना है. कट स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. 1 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको कट करना है ऐसे छोटे छोटे. ये जो मैम ने अभी दिखाया ये खुद ही 1 सेंटीमीटर है, इसीलिए आप इसको कर नहीं सकते हो. लेकिन अगर लॉन्ग है, लंबा है, तो आप इसको छोटा काट सकते हो. ठीक है. फिर इन्होंने क्या कहा? पुश 2 मैच स्टिक इनटू ईच ऑफ अ ट्यूब पीस. ये दोनों मैच स्टिक जो अपने सामने से क्लीन किए हुए हैं, देखो मैडम ने यहाँ पर क्लीन किए हुए हैं. ये देखिए मैम ने क्लीन किए हुए हैं. ठीक है. और क्लीन करने के बाद मैडम ने ये लगाया है. ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर लगाया है. और ट्यूब क्यों यूज किया है? क्योंकि ट्यूब जो स्ट्रेचेबल है और आपका जो मैच स्टिक है वो इट विल नॉट ब्रेक. तो देखो यहाँ पर ये तीनों सेम साइज की हो गई. 2 मैच स्टिक के साथ ये आपने रबर ट्यूब, रबर लिंक यूज किया जो आपके
साइकिल बॉल्स में यूज होता है। फिर ये फोर्थ स्टेप क्या लिखा है, एड मोर मैच स्टिक टू फॉर्म अ ट्राइंगल, और फिर इस तरह से आपको जोड़ा गया। ये देखिए आपने, ये देखो मैडम ने जोड़ा है, सी यू कैन सी ना हाउ मैडम हैज डन दिस। ओके, नाउ व्हाट मैडम कैन डू अनदर थिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ट्राइंगल है। नाउ दिस कैन बी यूज, दिस रबर ट्यूब कैन बी यूज विद वन मोर so that it can become a square. Now you see on the page number 27. Now make this 4, 5, 6 sided shapes by using tube pieces and matchsticks. इसी तरह से आपको मैचस्टिक को पहले क्लीन करना है, साफ करना है, फिर दोनों मैचस्टिक को इस तरह से जोड़ना है रबर ट्यूब के साथ, and then you have to make the shapes of squares. Here 5 shapes, as I told you, pentagon, and 6 shape, this is hexagon. Hexagon, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, find out how many angles are there in each of these shapes, mark them. तो कितने एंगल्स हैं वो उन्होंने पूछा है, तो एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 है, फिर 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटागन। गन, पेंटा मतलब 5 एंड गन मतलब साइड्स, है ना। फिर यहाँ पर गिनो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो गया 6, तो दिस इज हेक्सागन। हेक्सा मतलब 6, है ना, मैम ने आपको बताया था, याद है। देखो हेक्सागन, हेक्सा मतलब 6 और गन मतलब साइड्स, और ये है पेंटागन। पेंटागन मतलब 5 और गन मतलब साइड, और ये तो आपको मालूम है, दिस इज स्क्वायर। यस, ओके, सो यू हैव टू मेक हाउ मैडम हैज जस्ट नाउ एक्सप्लेन यू, कि किस तरह से मैम ने अभी आपको बताया, ठीक उसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, मैम ने क्या कहा कि आपको ये, मैम ने जैसे बनाया है, ये मैच स्टिक है और ये रबर जो साइकिल बॉल्स में यूज होते हैं वो यूज किए हैं मैम ने। ठीक है, पहले आपको क्लीन कर लेना है, एंड देन यू हैव टू यूज such rubber links, that is the cycle balls. Now what they have asked you, now push each shape downwards with the tip of your finger. Does the angle change when pushed down by the finger? उन्होंने क्या कहा, ये बात आपको समझनी है कि अगर आप यहाँ से पुश कर रहे हो, यहाँ से पुश कर रहे हो, क्या ये एंगल चेंज हो जाते हैं, शेप्स चेंज हो जाते हैं? यस, तो आपको क्या लिखना है, does the angle change when pushed down by the finger? Yes, yes, the angle changes, angle changes, है ना, एंगल चेंज हो जाते हैं जब आप पुश कर रहे हो। ये देखो यहाँ पर, यस, ओके, सो ये बात आपको करनी है अपने आप। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, शेप एंड चेंज इन एंगल, यस और नो। यहाँ पर एंगल चेंज होता है, यस, है ना। यहाँ पर नहीं होता तो आपको नो लिखना है, अगर होता है तो आपको यस लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पर भी अगर आप पेज करोगे तो यस लिखना है। ओके, जहां पर होता है वहां पर यस लिखना है, जहां पर नहीं होता वहां पर आपको नो लिखना है। तो यू हैव टू सी एट योर होम, ये आपको घर में करके देखना है। अब यहाँ पर आप देखो पेज नंबर 28 में आप देखो क्या बोला है, शेप्स एंड टावर्स। दिख रहा है आपको शेप्स एंड टावर्स, कितने डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर, लेकिन कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। दिख रहे हैं आपको, बिल्डिंग्स हैं। फिर ये आप देखो यहाँ से ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इतने बड़े बड़े। तो क्यों हम लोग ट्राइंगल्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ ट्राइंगल्स यूज होते हैं? कभी आपने सोचा है क्यों यूज किया जाता है, वाई? यहाँ पर एक क्वेश्चन भी किया है, देखो, फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स कैन यू गेसेस व्हाई ट्राइंगल्स आर यूज्ड इन दीज टावर्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा? क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर मैम आपको अभी बता रही है, क्योंकि टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, ये सारे बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। एंड ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आप देखोगे पॉलीगन्स हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीगन। पॉलीगन मतलब
डिफरेंट जो शेप्स के स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स हैं ये बहुत स्ट्रांग बनते हैं, इसीलिए यूज किए जाते हैं. लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्राइंगल्स आर यूज. अब ये आपको बताना कि ऐसे ट्राइंगल्स के स्ट्रक्चर्स कहीं पर मॉन्यूमेंट्स में, जो पुराने पुराने हमारे बिल्डिंग्स हैं, कहीं किले हैं, कहीं पर यूज हुआ है. बिल्कुल हुआ है. जैसे आपको बताते हैं कि पिरामिड जो इजिप्ट में है, ठीक है ना, वहाँ पर गीज़ा में, इजिप्ट में, ये डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स में पिरामिड बनाए गए हैं, जो मैडम अभी आपको ब्लैक बोर्ड में लिख के बता रही है. स्टूडेंट्स, अभी जो मैम ने अभी आपको समझाया है कि व्हाई दिस डिफरेंट शेप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर यूज्ड इन ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड टावर्स, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीगन. ठीक है, पॉलीगन मतलब डिफरेंट एंगल्स वाला एंड साइड्स वाला. ठीक है, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं. तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स मैम ने यहाँ पर लिखे हैं. जस्ट आप देखो, why triangles are used in these towers, bridges, etc. to make strong bridges, towers. To make strong, मैम ने लिखा है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, to make strong bridges and towers. Then क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है उस पेज पे, पेज नंबर 28 में, find out more places where triangles are used. ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर ब्रिजेस में या कहीं ऐसे कोई मॉन्यूमेंट्स है जहाँ पर यूज किया गया है ट्राइंगल्स. तो आपको ये लिखना है, पिरामिड कॉम्प्लेक्स ऑफ गीजा इन इजिप्ट. इजिप्ट में जो कॉम्प्लेक्स ऑफ गीजा है वहां पर पिरामिड में ऐसे ट्राइंगल्स, 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स यूज किए गए हैं. 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल यूज किए गए हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ. जैसे आप ऐसे बना रहे हो इस तरह से, ये देखिए, ऐसे आप बना सकते हो इस तरह से, और घर में भी आप ट्राई कर सकते हो. दिस इज 1 2 3 4. तो 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स यूज हुए हैं. ठीक है, तो क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीगन होता है और इसीलिए उनको यूज किया गया है. तो आज हमने यही देखा, यही सीखा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट यूज होते हैं, और इसी चीज को मैडम आगे और कराएगी. ठीक है, और समझाएगी. सो थैंक यू एंड होप यू लाइक दिस lecture. We are going to meet again for the next week. Okay, thank you.